रितेश भाई डांस सेक्सी था। मोहित भाई रात की पोस्ट भी अच्छी थी आपकी। रात को पार्टी की और कुछ नहीं किया। पोस्ट देखी थी, मैंने देखा था। पारी एक रितेश भाई सबसे मस्त है। नीरज भाई है। नीरज भाई का तो लेवल ही अलग है यार, वो हमारी गिनती में नहीं आते हैं। अल्ट्रा लेजेंड। हाँ पर अब सेक्सी लग रहा है, तू भी कैमरा बंद कर ले अब। ओ भाई वग गए। हाँ भाई, नमस्ते एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। मस्त सर। नमस्ते सर। हाँ भाई, नमस्ते संजीव, प्रेजेंटर बना दो। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ सर भाई, नमस्ते। नमस्ते। उनकी होगी फोटोग्राफिक अटेंडेंस? जी सर। ओके, वेरी गुड। और अमनदीप, क्या हाल? सर बढ़िया सर, आप बताओ।
मैंने, चलो रमनदीप भी बढ़िया है। अमनदीप से पूछा था, अमनदीप आया हुआ है? उसके माइक में प्रॉब्लम है। एक्चुअली पता नहीं, बाई चांस जिसको मैं बुलाता हूँ उसे कि माइक में प्रॉब्लम होता है ना भाई। हाँ भाई आत्मा सिंह, अमनदीप ऐसे हाथ खड़ा करने से नहीं चलेगा। हाँ जी सर। क्या हाल है? सर बढ़िया सर। अच्छा, लास्ट क्या किया था हम लोगों ने? सर एक तो पोजीशन सर्कल वाला किया था और कीपिंग लाइट हाउस राइट हेड किया था। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिया था। सर आपने पास पेपर का एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 4। वेरी गुड, मैंने कहा था एक क्वेश्चन कर लेना, है ना? तो सबने किया। वो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, किसी लड़के ने भेजा था। आत्मा सिंह हो गया था फिर वो? सर अभी कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था। लो, होमवर्क में तो भाई करना होगा ना। चलो अभी उसको बाद में करना। अभी आप लोग, अभी आज मुझे पैसेज प्लानिंग शुरू करना ही करना है, ठीक है ना? एक मिनट रुको जरा, मैं अपना कमरे का दरवाजा बंद करूँ, आवाजें आ रही हैं। गुरपिंदर, मेरी स्क्रीन आ रही है कंप्यूटर की? यस सर। चलो वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर ये वाला भी दिया था मैंने स्क्रीन पे। ये किया था आप लोगों ने? यस सर, ये उसी टाइम कर लिया था। पैसेज प्लानिंग, ठीक है। ओके। हाँ गौतम, आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। Okay. For exam purpose, I am discussing passage planning. Two types of question can be asked in the exams. First one is theoretical, in which he could ask you, okay, what are the stages of passage planning and explain each stage. एक ही हो गया। Second time क्या होगा? In the passage planning, what all publications will you consult? So there you will have to write down a list of publications, maybe around at least 30 to 35 publications. ठीक है ना? So these are the main two types of theoretical questions which can be asked in the exam.
Next type is the plotting, planning and plotting on the chart. Plotting on chart. Plotting courses on the chart, I would say, which is more practical. Like they will give you from so and so position, plan a safe passage to so and so position. So he'll give you positions, and in that he'll give you what type of ship you are, what is the draft. He may give you draft, what under clearance is expected, and he may give you weather also. So these are the two types of questions which are asked. Usually theoretical questions does not come so frequently. It is the practical part, the second question, planning and plotting courses on the chart, that comes. Okay. So in any of these two questions, first of all, you should write down what are the 4 stages of passage planning. ठीक है ना? Whichever type of question is asked, you have to write down 4 stages and at least write down 1 line on each stage, 1 or 2 lines. If it is theoretical, explain each passage planning or each stage of passage, then you have to write down in detail. But if it is practical, like planning on the chart, then you have to write down 4 stages, write brief 1 line on each stage, what is the meaning of each stage, and then do the plotting on the chart, courses plotting, marking all those points, waypoints and all that, and making waypoint table. ठीक है? So any doubt in this? Sorry, what I have told you, the types of questions which are asked in passage planning. Okay, next comes the let's go to the topic. Remember, when we are actually on the ship, we should do planning, passage planning from berth to berth. You can call it passage planning, voyage planning, different names can be given, but the objective is same, that you have to plan your passage from berth to berth. Since we will have only one chart in the exam, so that's why they don't give a position of the berth, they always give pilot station position, to so and so pilot station, something like this. But practically on the ship, we do the berth to berth. 4 stages of each passage plan: appraisal, planning, execution, monitoring. These are the 4 stages. All of you write down these 4 stages and write down one line what is given on the screen. All of you write down these 4 stages. So here appraisal means getting to know the plan, collecting information about the plan, and what information about the kind of weather expected, kind of currents expected, what is the requirement of the company and all that from various sources. When we say sources, means source can be a publication, source can be a navigation warning from the Navtex, source can be company's policy, source can be some other person also from where I get the information, source can be the message received from the agent, source can be charter party. So appraisal means collecting all the information about the passage. Planning means now once you have all the information, then you sit down and plan the passage. Planning in which you lay down courses on various charts,
keeping in mind the information collected, keeping in mind the company's policy and all that. Making waypoint table. Okay, so that is the part of the planning. 3 is execution. So 1 and 2 stage appraisal and planning. They are done by usually navigating officer, taking guidance from master and all that. In execution, the entire bridge team comes into picture. Executing means whatever we have planned, now we start following that plan. Means once the, you can say, cargo operations are over in any port or any operation, for whatever operation you had come to that port, once that operation is over, now we have to sail out. So then the execution starts. Cargo discharging is over, now maybe chief officer is doing all these calculations and all that, and in the meantime we start following the plan what we have. We call the pilot, we give them 1 hour notice, 2 hours notice, whatever. Agent also, then casting off. Now plan has started, execution has started. And during execution and monitoring both will go together. Whatever you do now, execution means doing, working. Whatever you do, will that get me the required result? That is monitoring. To make sure that our result is what we wanted, we do monitoring. For example, you tell AB that okay, starboard 20. So when you give that starboard 20 order, it's execution, that you want to change the course of the ship. And AB also puts wheel on the starboard side. That is execution. But by mistake, the AB may put wheel on the port side. So you will check what is AB doing. You will monitor the AB, or you will monitor the ship heading, whether it is turning to starboard or not. If it is not turning to starboard when you have given wheel to starboard, that means something is wrong. So you are monitoring. You did something, or somebody else did execute something, and you want desired result. So you monitor whether ship is turning to starboard or not, or whether rudder is going to starboard or not. So that is monitoring. So understood this basic concept of 4 stages: appraisal, planning, execution, Yes, sir. and monitoring. Now, actually on the ship, depends upon company's policy to policy. You may plan the voyage or the passage planning in 3 stages also. As written on top, you see departure berth to departure pilot station. For example, you depart from Bombay. So Bombay, you depart from the tanker terminal. Whatever island is that Butcher Island, if anybody has gone to the Bombay. So from the berth to the pilot station, you may have a small passage plan. Then from Bombay pilot station to, for example, you are going to Manila, Philippines. Then you may plan or make a passage plan for pilot station to pilot station. And then once you arrive at the Manila pilot station, you have another plan from that Manila pilot station to the berth. So that will make things more easier and executable also. Because when you are going pilot station to pilot station, there I'll be in the sea, mostly away from the dangers. Then their detailed more focus is not required. Whereas when we are berthed to the pilot station, more focus is required, more detailed information is required. So we can do that practically also on the ship. Some companies do follow this kind of system.
Okay, so that is about the basic how do we go about passage planning. Okay, so now let's go to the slide. So any doubt till now? सर ये अराइवल पायलट स्टेशन टू अराइवल पायलट स्टेशन क्या रहेगा? अराइवल पायलट स्टेशन कहाँ लिखा है? अराइवल टू अराइवल, डिपार्चर टू अराइवल पायलट स्टेशन। सर सी पॉइंट जो है इसका 3 trips in 1 अराइवल पायलट स्टेशन तो अराइवल बर्थ है। फॉर एग्जाम्पल आप मनीला, फिलीपींस में है ना मनीला पोर्ट, वो उसके पायलट स्टेशन तक आपने प्लानिंग कर ली। अब वहां से पायलट स्टेशन से बर्थ तक हो सकता है वो 10 माइल्स हो, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा प्लानिंग। हो सकता है वो 100 माइल्स हो, फिर यस सर। नैरो पैसेज क्रॉस करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप बोस्फोरस स्ट्रेट क्रॉस करते हो टर्की में, तो उसके लिए और डिटेल प्लानिंग चाहिए ना। यस सर। तो वही होगा। तो बेसिकली पायलटेज एरिया की एक अलग से अगर पैसेज प्लानिंग हो ज्यादा अच्छा रहता है। मिड ओशियन में बहुत कम कोलिजन्स होते हैं। यूजली कोलिजन्स कहाँ हो रहे हैं ज्यादा? वो हो रहे हैं हार्बर्स में, नियर द कोस्ट, और कमिंग आउट ऑफ द पोर्ट, गोइंग इन द पोर्ट। वहाँ कंफ्यूजन रहता है, पायलट कंफ्यूज रहता है, फिर पूरी ब्रिज टीम कंफ्यूज रहती है। तो इट्स हैव ए प्रॉपर प्लानिंग स्पेशली इन दिस पायलटेज एरियाज। ओके, आप लोग कुछ नोट कर रहे होगे कि नहीं? हाँ सर। यस सर, कर लिया सर। चलिए, यस सर, हो गया। we have to go from Mumbai to Manila, ठीक है ना? That's it. I come to know that my ship is going to go from Mumbai to Manila. Master just comes and tells you, okay, do a planning. We have to go Mumbai to Manila. Next voyage is from Mumbai to Manila. That's it. He doesn't tell you anything else. What more information मैं इसको ऐसे बोलूं? निखिल अग्रवाल पढ़ो जरा, मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे क्वेश्चन। So what more information you would like to know?
Before you started laying courses on chart. Before you start. And what will be the source of that information? Okay. Nikhil, understood the question? Yes, sir. प्रिंस कुमार, प्रिंस की 2-3 क्लास में। अरे प्रिंस कहाँ हो भाई तुम? पिछली क्लास में तुमने कोई जवाब किया था। सर यही हूँ, मैंने रिस्पांस भी किया था सर आपको व्हाट्सएप पे पिछली बार। सर यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। ओहो, कहाँ पे हो? मैं सर धर्मशाला के पास ही रहता हूँ। चल ध्यान रख, तू कहीं बोट में बैठ के तो क्लास नहीं अटेंड कर रहा? नहीं सर। मजाक कर रहा हूँ, that should not happen with you. चलिए, ओके, पढ़ो जरा क्वेश्चन, ऊपर से पढ़ो। सर मेरे को ना आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। हाँ, तो अभी तक क्या कर रहे थे? इसमें हो रही थी, अभी जस्ट बंद हुई है जब से आपने ये वाला क्वेश्चन लिखाना शुरू किया है। अरे वाह, क्या बात भाई, तभी मैं कह रहा तू बोट में बैठ कर नहीं कर रहा क्लास। सर बोट में बैठ के तो नहीं कर रहा हूँ, पर नहीं हो रही है शेयर। चल कोई बात नहीं। विनीत, ऐसा कैसे? फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर क्लास क्या कर रहे हो यार? यस सर। उनको सर लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ दोबारा। विनीत, स्क्रीन पढ़ो ऊपर से जो मैंने लिखा है एग्जांपल से। सर सिर्फ एग्जांपल लिखा रहा है सर, आगे नहीं आ रहा है इसमें। क्वेश्चन लिखा नहीं आ रहा है? नो सर, क्वेश्चन लिखा नहीं आ रहा है, सिर्फ एग्जांपल लिखा, उसका आगे क्वेश्चन ही लिखा है। अभी तो इसने पढ़ा था सर। इसका अभी तो कुछ नहीं आ रहा है सर, उसकी स्क्रीन में आ रहा होगा। चलो कोई बात, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। अच्छा, मेरा डेस्कटॉप आ रहा है अभी? नो सर, ये अभी वही आ रहा है सर, स्क्रीन शेयर की हुई जो आपने एग्जांपल लिखा रहा है। हाँ सर, डेस्कटॉप आ रहा है सर, डेस्कटॉप आ रहा है। चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सर लीव करके दोबारा ज्वाइन करते हैं। जून, हाँ भाई चलो। विनीत के बाद कौन था? विपिन, सबसे एंड में। विपिन आ रहा है स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन? विपिन, सो आई गेव यू। विपिन की कहाँ है भाई? विपिन मिश्रा, मिश्रा जी। हमारी सोसाइटी में 10 मिश्रा जी हैं। सर किसी का नाम 10 है या टोटल 10 है? सर नेम है ना। अरे टोटल कह रहा हूँ। हाँ भाई, शमित बग्गा, स्क्रीन आ रही है? यस सर, आ रही है स्क्रीन। चलो पढ़ो एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, मुंबई टू मनीला। क्वेश्चन, what more information you would like to know before you start laying courses on chart, and what will be source of that information? Very good. So I just gave you, or master just gave you this information that you have to go from Mumbai to Manila. That's it. Now next is I don't think you can start plotting or you can start passage planning just with this information. Do you all agree? So you need more detailed information. Yes. So my question is very simple. All of you have worked on the ships. There was a task also in your record book, cadets record book, training part,
about passage planning. Yes. So what information would you like to know more? One by one, everybody has to. All of okay. I'll give you 10. I'll give you 10 minutes to write down at least 10 points on this. ठीक है? फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है? All of you write down information what you need and what will be the source of that information on the ship. Think you are on the ship. So it is now 9:34. I am giving you 10 minutes to write down 10. Everybody at least write down 10 points on this. अरे संजीव ये विपिन मिश्रा के एब्सेंट लगवाना. अच्छा विनीत अब आ रही है स्क्रीन? यस सर अब आ रही है. ठीक है. प्रिंस आ रही है स्क्रीन? यस सर आ रही है. चलो क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर. चलो लिखना शुरू कर दो. मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि सर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी. नहीं किसी को स्क्रीन नजर आ रही तो मुझे बता दो. The passage is from Mumbai to Manila. That's what you have been just told by the master. My question is very simple. What more information would you like to know before you start laying courses on the chart, and what will be source of that information? Okay, sir. Okay, ये कौन है? किशन कुमार. Sir, Kanish. वेट करते हैं बाकी लोग का भी.
हाँ भाई रिद्धेश, यस सर। कितने लिख लिए? सर 5 लिख लिए सर। कैडेट रिकॉर्ड बुक है आपके पास? हाँ जी सर। अरे वाह, वेरी गुड, उसको भी खोल लो। आप कैडेट रिकॉर्ड बुक देख सकते हो अपने। ओके सर, तो हो गया सर। मुदित सूद, क्या हाल? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। बढ़िया। तो तुम ठीक है? तुम्हारे वहाँ ज्यादा बाढ़ तो नहीं है? सर यहाँ पे बाढ़ नहीं है सर, यहाँ पे बिजली का ही है सर, लाइट नहीं होती यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, कहाँ से हो? अमृतसर सर। अमृतसर? अमृतसर तो ठीक है यहाँ से। चलो वेरी गुड। कितने पॉइंट लिख लिए मुदित? 7। 7? अरे वाह, चलो अभी तक हाईएस्ट नहीं। सर हो गया सर। कनिष्क ने लिख लिए थे भाई 10। अच्छा, दिव्य, दिव्य कुमार सक्सेना, यस सर। कितने लिख लिए? सर 8 9 अभी और लिख रहा हूँ सर। 8 9। आनंद मोहन झा, हाँ आनंद मोहन से कभी बात नहीं। आनंद मोहन जी, यस सर। कितने लिखे? अरे आनंद मोहन, व्हाट हैपेंड, यू नेवर रिप्लाइड फर्दर? सर आई रिप्लाइड सर, 6 लिखे हैं। हाउ मेनी? 6 6? तो अभी 2-3 मिनट बचे हैं, थोड़ा जल्दी लिख लो। अंकित, अंकित ने कितने लिखे? सर 9 लिख लिए। 9। अंकित वर्मा, तुम्हारा एक और भी था ना, शिवाज भी तुम्हारे बैच में है क्या? ये जूनियर में है? हमारे में तो नहीं है सर। हमें तो सर हमारे बैच में। ठीक है। केशव चौधरी, यस सर। कितने लिखे? 7 सर। 7? अरे वाह, तो लिखो भाई थोड़ा जल्दी। चलो, विपिन की आवाज नहीं आई। विपिन, आ रही है स्क्रीन? सर उसकी तबीयत खराब है सर। अरे क्या हो गया? चलो विनीत, आप बोलो, आप पहला पॉइंट बताओ विनीत। Yes sir. Sir, first we will check our charts are corrected up to date. तो कैसे पता चलेगा? सर नोटिस टू मैरिनर से अपने चार्ट चेक करें। और या सर से? नो सर, क्यूमुलेटिव नोटिस है सर, क्यूमुलेटिव से लास्ट सारे करेक्शन चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली कितने चार्ट होंगे बॉम्बे टू मनीला विनीत?
15 to 20 चार्ट सर। 15 से 20 बस सर नो आइडिया। एक वो है ना गेट आइडिया, एक ऐड आती थी ना विपिन। यस सर। गेट आइडिया। चल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, बट आई थिंक बॉम्बे टू मनीला में कम से कम 50-60 चार्ट तो होंगे, ठीक है ना। अब इन 50 ये सर वही कैटलॉग से चूज करेंगे ना सर? एक मिनट रुको, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, ठीक है ना। विपिन आपको 50-60 चार्ट ऐसे चेक करने और वीकली से तो कितना टाइम लगेगा? बोलो विनीत। यस सर। अगर ऐसे 50-60 चार्ट्स चेक करने तो कितना टाइम लगेगा? कुमुलेटिव देखिए सर बोलो। 2 to 3 days सर। हाँ हमारे पास तो पैसेज प्लानिंग के लिए कप्तान सिर्फ 5-6 घंटे 7 घंटे देगा। तो सर अपने ऑलरेडी सर पहले से चेक अपडेट करके रखने चाहिए सर, ताकि एंड में दिक्कत ना हो। बाकी सर उस पे अपना चार्ट करेक्टेड का वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं सर, उससे जल्दी चेक हो सकते हैं सर सारे चार्ट्स। कहाँ मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड? पेपर चार्ट फोलियो देखेंगे ना हम। यस सर, चार्ट लॉग बुक सर, करेक्शन चार्ट लॉग बुक। चार्ट करेक्शन लॉग, ठीक है। यस सर। ओके। वैसे चार्ट के नीचे में भी लिखते हैं सर, लास्ट करेक्शन देख लेंगे और उसके बाद जो लास्ट करेक्शन ले लेंगे उसको सर चेक करते चले जाएंगे। मालिक तब भी तो 60 चार्ट खोलने पड़ेंगे ना। गलत बोल रहे हो गौतम सर। अरे आपस में डिस्कस मत करो प्लीज। देखो अगर फिजिकल क्लास हो अलग बात है, बट ऐसे ऑनलाइन में आपस में कुछ सुनाई नहीं देगा। एज आई टोल्ड यू, चार्ट करेक्शन लॉग उससे ज्यादा जल्दी पता चलेगा। ऐसे 50-60 चार्ट को खोल के तो नहीं देखता रहेगा भाई, ठीक है ना। अगर हमारे पास पेपर चार्ट है तो, अगर ENC है तो कैसे पता चलेगा विनीत? सर उसमें तो सर डायरेक्ट ही आया था सर, लास्ट करेक्शन ENC से जो भी आपको लास्ट लास्ट नोटिस करेक्टेड जो भी हो, वो आप अपने जो आपके पास सॉफ्टवेयर है जो भी है उसमें आप चेक करोगे ENC में कि लास्ट अपडेट कब लिया है, ठीक है ना। तो वो आप वहाँ लास्ट अपडेटेड वो डेट चेक कर लो कि कब अपडेट हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपकी एक आई थिंक इसमें लॉग आ जाती है ना, ENC लॉग होती है ना सॉफ्टवेयर में। यस सर, ठीक है, तो वहां से पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें अपना काम जो करना है ना वो जल्दी करना है। तो उसके लिए थोड़े से और भी शॉर्टकट हो सकते हैं, शॉर्टकट नहीं तो राइट प्रोसीजर बोलूँगा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा था सुमेश। सुमेश राणा जल्दी बोलो। पब्लिकेशन चेक करूंगा सर। पब्लिकेशन चेक करूंगा, क्वेश्चन क्या है? वेदर सर, वेदर देखूंगा। वेदर देखोगे, अच्छा। वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए तुम्हें? कितने दिन का पैसेज बनेगा सर? ओहो, अगर 20 दिन का पैसेज है, सपोज आज है 15 जुलाई, तो 5 अगस्त का मुझे मिल जाएगा वेदर? नहीं सर, वो बाद में आ जाएगा फिर आप ये कह जब सकते आएगा सर। नेक्स्ट 2-3 डेज का वेदर कैसा रहेगा जिस एरिया से मैं पास करने वाला हूँ, है ना। यस सर। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट वेदर कंडीशन कैसी है बॉम्बे में, ठीक है ना।
ओके, तो आप लोग ये लिखते जाना, ठीक है ना। तो ये कहाँ से पता चलेगा सुमेश? वेदर फोरकास्ट आता है ना सर। आपने लिया है कभी? नहीं सर। फिर तुमने कह दिया आता है, तो जहाज पे कुछ क्या किया फिर भाई जहाज पे? देखा सर मैंने लेते हुए ना, खुद नहीं लिया अभी। खुद लेना था ना बेटे, अब तो जाके तुम करोगे, फिर यही तो ट्रेनिंग पीरियड था। ओके, वेदर इंफॉर्मेशन यूजुअली या तो सेट सीज पे आएगा, यूजुअली एक फैक्सिमाइल होता है वेदर फैक्सिमाइल, वहां से पूरा एक सिनॉप्सिस चार्ट आ जाता है, उससे आपको पता चलेगा। या नेवटेक्स पे भी आती रहती है वेदर इंफॉर्मेशन, आता रहता है ना। यस सर, सिनॉप्सिस एंड प्रेडिक्शन। फिर हाँ, श्योरान हाशमी, यस सर। बोलो। सर नेविगेशनल हैजार्ड्स और वार्निंग्स देखेंगे सर। नेविगेशन हैजार्ड्स एंड वार्निंग देखोगे? हाँ सर, सेट सी से अपने को वो मिल जाएगी नेविगेशन। नेविगेशनल हैजार्ड का एक एग्जांपल दो। आपने बोला नेविगेशन हैजार्ड्स एंड वार्निंग, है ना, यही बोला ना? यस सर। एक एग्जांपल दो। अरे क्या हुआ हाशमी? यस सर। अरे बताओ भाई, एग्जांपल दो। सोच रहे हो? सर वो तो मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो सकता है जो हमारे पैसेज के दौरान जो। एग्जाम्पल दो मुझे, कोई भी ऑब्स्टेकल का भी एग्जाम्पल दो। अरे क्या हुआ? सर जैसे अपना किसी एरिया में ड्रेजिंग हो रही है या फिशिंग जोन है कोई, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। नेविगेशन हैजर्ड एंड वार्निंग। नेविगेशन हैजर्ड मींस फॉर एग्जांपल कोई रैक है, कोई रॉक्स है, कोई वेल है, सबमर्ज्ड वेल है, ठीक है ना। सारी नेविगेशन हैजर्ड है। कोई भी एक ऑयल प्लेटफॉर्म है जहां से पास करोगे, अगर वो ऑयल प्लेटफॉर्म है, वो भी नेविगेशन हैजर्ड है। सो लेटेस्ट एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वेल क्या होता है? कुआं। क्या होता है ना, ये जो बड़े बड़े रिग्स होती है ना, ये कहीं पे रिग किया सपोज कहीं पे, और होता क्या है, ये ऐसे नहीं, यहाँ पाइप डालते हैं ऑयल रिग्स, पाइप डालने के बाद उसमें से निकालते हैं कि वहाँ उनको ऑयल मिला कि नहीं मिला। अगर कहीं ऑयल नहीं मिला तो फिर उसको छोड़ देते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो वो वेल होता है। अगर वहां पे मिल गया तो एक परमानेंट हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना से वहां से तेल निकालना शुरू किया। या वहां तेल खत्म हो गया तो मैं कहीं और अपनी रिग को शिफ्ट किया और उस ऑयल वेल को ऐसे छोड़ दिया कि चलो 6 महीने बाद दोबारा इसको आके एक्टिवेट करूंगा, तब तक तेल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है वो हम बाद में करेंगे प्लीज, तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट किस पे करें? पैसेज प्लानिंग। लेटेस्ट एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। लेटेस्ट, जो कोई लेटेस्ट
हैंड नेविगेशन हैड है. फॉर एग्जांपल कहीं पे शिप देयर वाज ए कोलिजन बिटवीन टू शिप्स एंड वन शिप सैंक, तो लेटेस्ट हैजर्ड हो गया ना. कहीं पे बार्ज डूब गई, कहीं शिप डूब गया, ठीक है, तो वो लेटेस्ट नेविगेशन हैजर्ड हुआ. और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे वो चार्ट पे होंगे, ठीक है ना. जो लेटेस्ट है उनका कहाँ से पता चलेगा? हाशमी, हाशमी. यस सर. अरे मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा यार. लेटेस्ट नेविगेशन हैजर्ड कहाँ पता चलेगा? सिनैप्टिक्स पे वार्निंग्स आती हैं सर. एक MSI आता है. MSI का पता है क्या होती है? MSI का फुल फॉर्म? मरीन सेफ्टी इंफॉर्मेशन. यस, मैरिन सेफ्टी इंफॉर्मेशन. तो वो कहाँ पे? वो भी एक नेविटेक्स का ही है, बट वो सेट सी पे आते हैं. तो सेट सी पे जो नेविगेशन वार्निंग्स आई और या सेट सी पे आई, ठीक है ना, वो आएंगे जो लेटेस्ट या पिछले 1 महीने में हुआ कुछ. ओके, शमित बग्गा, व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वुड यू लाइक टू नो? शमित. सर कैप्टन का पर्सनल एक्सपीरियंस. क्या? कैप्टन का एक्सपीरियंस. कैप्टन का एक्सपीरियंस. ये सब वो गाइड कर सकता ना हमें. तुम पैसेज प्लानिंग कर रहे हो और तुम कप्तान का एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि उसको कितना एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मतलब वैसे नहीं है? अपना जैसे टाइट टेबल्स भी हो सकती है सर. अच्छा, तुम्हारे लिए टाइट टेबल ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू एवरीबॉडी नाउ. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल इंफॉर्मेशन आई वुड से वुड यू लाइक टू नो? चलो साहिल आप बताओ. शमित के लिए तो टाइट टेबल है. सर बर्ड्स कहाँ पे हैं और हमारा शिप पे बर्ड्स रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है या नहीं. ठीक है. रिधिश. सर ड्राफ्ट यूपीएससी सर. रमनदीप. Sir, location of pilot station from volume 6 LRS. Prince Kumar. Prince, what question I have asked just now? सर आपने पूछा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको क्या लगता है? ठीक है ना. प्रिंस बोलो. मेरे अकॉर्डिंग तो सर वेदर का ही होना चाहिए कि वेदर कैसा है. ठीक है. प्रभजोत. यूकेसी. निखिल. So position of arrival. Position of arrivals. नीरज. सर सेलिंग डायरेक्शन और गाइड टू पोर्ट एंट्री. मैंने इंफॉर्मेशन पूछी है, पब्लिकेशन के नाम नहीं पूछे. नीरज कहाँ है? क्वेश्चन क्या था नीरज? सर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पैसेज प्लानिंग के लिए? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. मुकुल गौड़. सर शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट. मुदित सूद. वो तो है ही मुकुल, उसमें क्या है, वो तो करना ही है हमने. मुदित सूद. लोकल वार्निंग्स. लोकल वार्निंग. कृष्णा. सर वेदर वार्निंग. केशव चौधरी. सर अराइवल बर्ड्स रिक्वायरमेंट्स. केशव अग्रवाल. सर अराइवल ड्राफ्ट. कनिष्क. सर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स. जसबीर सिंह. सर ड्राफ्ट एंड यूपीएससी. कनिष्क, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसका? सर अगर सर नियरेस्ट जो अपना ऑयल स्पिलेज का हुआ तो उसका हो गया, स्टेशंस का हो गया नियरेस्ट, इफ इन द केस कुछ इमरजेंसी हुई तो.
तो उससे जो पैसेज प्लानिंग पे, अगर मेरे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं होंगे तो पैसेज प्लानिंग पे क्या असर पड़ेगा? सर पैसेज उसी हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा ना, क्योंकि अगर इफ इन द केस वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तो इमरजेंसी के लिए एटलीस्ट रेडी रहें। तो ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट कहाँ से मिलती है कनिष्क? सर याद नहीं है सर। अच्छा, याद ही नहीं है तो तूने मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिया। बता हरप्रीत। एजेंट भेजता है ना सर। करंट एजेंट भी भेजता, नोटिस फॉर्मेलिटी में भी होता अरे है। यार, इससे पूछूंगा, बीच में नहीं बोलो प्लीज, सारे डिस्कस करूंगा, मुझे ये कवर करने दो पहले। गुरपिंदर। सर गौतम। नेविगेशन लाइट सर। यांश। सर ड्राफ्ट एंड यूकेसी। दिव्य कुमार। सर ड्राफ्ट ऑफ द वेसल। आत्मा सिंह। सर पेपर चार्ट्स या फिर ईएनसीज। असाद। सर ड्राफ्ट एंड यूकेसी अकॉर्डिंग टू द कंपनी। अपूर्व। सर पेपर चार्ट या ईएनसी चार्ट पे अवेलेबल है या नहीं है? अंकित। सर ड्राफ्ट एंड यूकेसी। आनंद मोहन। सर वेदर एंड ड्राफ्ट सर। अमनदीप। आदित्य। सर डिपार्चर ड्राफ्ट एंड यूकेसी। ठीक है, वाई ओनली डिपार्चर ड्राफ्ट? सर क्योंकि डिपार्ट करेंगे ना पहले। ठीक है सर। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो ड्राफ्ट एंड यूकेसी, जिसने भी बोला, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब मुझे जहाज का ड्राफ्ट नहीं पता है और मुझे क्या अंडर कील क्लियरेंस रखनी है तो मैं कैसे, सोचने वाली बात है। बाकी सब तो बाद में आएगा ना। हम चार्ट पे कोई भी कोर्स डालेंगे बिना ड्राफ्ट जाने हुए, विदाउट नोइंग व्हाट इज द ड्राफ्ट ऑफ द शिप, हाउ विल यू पुट कोर्सेज ऑन द चार्ट? ठीक है, वेदर पता होना चाहिए, बट वेदर तो ठीक है, आई कैन ऑलवेज मैनेज वेदर। वेदर हमेशा कभी ख़राब होता है तो हम डिले भी कर सकते हैं जहाज को। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है तो हम रात को सेलिंग नहीं करेंगे, सुबह कर लेंगे। और किसने कहा था वार्निंग, वो सॉरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स। कम ऑन, व्हेन यू आर डूइंग प्लानिंग हैव योर प्रायोरिटीज कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, चाहे वो हम एक्चुअली प्लानिंग कर रहे हो और नेविगेशन कर रहे हो। ये ध्यान में रखना लाइफ में कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो अपनी अपनी वो हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, बट आई फील ड्राफ्ट एंड व्हाट अंडर कील क्लियरेंस आई एम एक्सपेक्टिंग और व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, वी विल टेक ब्रेक एंड कंटिन्यू ऑन दिस डिस्कशन। ठीक है ना? इतने में अगर आपको है तो कुछ और इंफॉर्मेशन लिख लो। ठीक है ना? ओके, लेट्स टेक ब्रेक, सी यू आफ्टर द। हाँ जी बोलो।